Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, I I humbly I'm really very thankful to you for joining us today for this important webinar on new modalities of export finance scheme and strategies for expansion. I'm sorry, I'm having a bad throat. My name is Madiha Rubab, and I'll be moderating this session. We are very excited to have with us Mr. Muzammil Khan, Muhammad Muzammil Khan. He's an expert in export finance scheme. He will be presenting today's session. Before I begin, I would like to go over a few housekeeping items. Please ensure that your microphones are muted to avoid any background noise during the presentation. If you have any questions during the session, I request you humbly to kindly type them in the chat box, and we will be addressing them during the Q&A session after the presentation, at the end of the presentation. Okay, now I virtually hand over the virtual mic to Mr. Muzammil Khan Sahab. And before handing over the mic, I would like to introduce him. I have to go through his, accolades. It's a long list of, mashallah, accolades he have. Mr. Muzammil Khan, just a minute, please. Okay. Mr. Muzammil Khan is a specialized trade finance banker with over 16 years of exclusive trade experience on prominent positions across various leading banks such as Habib Metro Bank, Mizan Bank Limited, Bank Al Falah, and Bank Islami. He has various experiences in trade-based money laundering, modern techniques in trade operations, and collaboration with banks' internal product development and business teams. And he demonstrated a holistic approach throughout. He holds various certification in trade finance and in allied subjects from SPP, LUMS, and other reputable institutions. Prior to joining Exim Bank, Muzammil Saab was head of trade at Al Baraka Islamic Bank. I now hand over my virtual mic to Mr. Muzammil Khan Saab. Please, sir, do the honors. Thank you. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much, Madiha, for the introduction and for inviting me on such a wonderful webinar. Assalamu alaikum, everyone. Madiha, should I share the screen first? Yes, sir. Kindly go ahead. I hope this is visible to all of you. Basically, the topic on which I have been invited to discuss is regarding, as Madiha already elaborated, new modalities of export finance schemes, and importantly, the strategies for export expansion. Before I start the formal discussion, at the outset, I will just let all of you know that we will be discussing in this webinar, we will discuss overall on these topics and overall trade numbers for the financial years 2023-2024, and the balance of payment position, then the export finance schemes which have been, functional in banking industry. State Bank of Pakistan is offering different schemes to the exporters. Further, there has been a transition of export finance schemes from State Bank to the Exim Bank. We will be discussing the modalities behind this and the rationale for this transition.
Then importantly, exactly I don't know about the audience of this webinar, and I believe there will be some trade finance bankers as well, or or students, or which are directly or indirectly related to the operations of trade financings. So we will be discussing the key modalities, differences between the State Bank EFS scheme and the Axiom administrated export finance schemes. Then of course the benefits under these revised export finance schemes, and what is the benefits to the exporters and the commercial bank. Then after these all general discussions, importantly the export expansion potential and the way forward will be discussed. And then I will be highlighting with you the Axiom's global networking and the operations globally, how the Axioms operate around the globe. And then at the end, we will be having a question answer sessions. As Madhya has already requested to all of you, you can, if you have any question or query, you can just send in comments at the end of this session. And particularly within a Q question answer session, we will be addressing your questions. So now, so now if you can see, first of all, this is an overview of trade numbers for the financial year 2023-2024, for the year which have been ended on 30th June recently. So you can see the export number is 30.6 billion, 30.6 billion US dollar, as compared to the 27.27 billion, which was the export number of the last financial year. Then there is an increase in this number. Then subsequently import banking, the bankers, especially we are aware of this thing, that we are pressing our imports very hard since last 2 years or so. So this import number during the financial year between 2021 and 2022 was around 70 billion, which was curtailed to 55 billion in 2022-2023, and then that is further curtailed to 54 billion. And the reason, every one of us is well aware कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर एक स्ट्रेस है, और एक जो हमारी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी जो इंपोर्ट है उसको बैक या उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो फर्दर ये जो 30 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, अगर हम इसको देखें तो हमारा हमेशा से एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारी मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा जो लीडिंग सेक्टर है वो टेक्सटाइल रहा है। अराउंड 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट बिजनेस में टेक्सटाइल सेक्टर की होती है, विच इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जो टेक्सटाइल की सब कैटेगरीज, जिसमें रेडीमेड भी है, उसमें कॉटन, यार्न, एंड इंक्लूडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ जो शेयर है टेक्सटाइल सेक्टर का, उसका जो कम्युलेटिव पोर्शन है वो अराउंड 60% होता है। आफ्टर दैट फूड आइटम्स जो हैं वो उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट है उसको सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग आवर एक्सपोर्ट ऑफ rice. Sometime subject to specific approvals, we often export wheat, sugar as well, others, few pulses, and a few other things. Although then subsequently we also import these commodities as well, as per the requirement or the necessity of the as per the consumption. So अभी ये जो नंबर एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का आया है, जो एक्सपोर्ट में, और इसी तरह इंपोर्ट का जो हमारा बिल है उसमें जो हमारा लीडिंग पोर्शन है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। हमारी एनुअली ऑलमोस्ट देयर इज 17 to 18 बिलियन US डॉलर की हमारी जो है वो पेट्रोकेमिकल्स जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं ओवरऑल, फिर उसकी क्लासिफिकेशन उसके अंदर आ जाती है। तो ये हमारा इंपोर्ट का बड़ा बिल है जो हमारी बुक्स के ऊपर रहता है। और उसके साथ साथ फिर हमारी जो अगेन फूड आइटम्स, फिर हमारी जो मशीनरी है और हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, फिर वो हमारे जो है हमारे इंपोर्ट बिल में मेजर पोर्शन उनका होता है। अगर हम इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के नंबर्स को देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ये जो हमारा 27.7 बिलियन से 30.6 बिलियन जो हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ है, इसके अंदर हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज ड्यू टू द एक्सपोर्ट इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ राइस।
हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट है इसने फिनोमिनली अच्छा परफॉर्म किया है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. सो अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की इंक्रीज है एक्सपोर्ट के अंदर एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर 2022-2023. There are different, I mean there is lot of other factors involved in it. Particularly एक तो हमारी जो क्रॉप है राइस की अच्छी थी हमारी, और जो हमें एक वैक्यूम मिला हमारे एक्सपोर्टर्स को, दैट वाज लाइक देयर वाज सॉर्ट ऑफ बैन ऑन द नॉन बनास्पति राइस ऑफ export of India. As you all know, the India is the largest exporter of the rice. So this vacuum was well targeted by the Pakistani rice exporters. तो हमारी राइस जो है वो हमारी उसमें इंक्रीज आया है, वो बढ़ी है. और इसी वजह से जो हमारा शेयर था जो कि अमूमन फूड प्रोडक्ट्स का 18%, 17 to 18% होता है, वो बढ़ के जो ओवरऑल शेयर है दैट इज 25% इन आवर एक्सपोर्ट नंबर्स जो हमारे फूड सेक्टर का है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो हमारी, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल बिकॉज उनकी जो नंबर्स थे वो एट पार रहे हैं 2022-23 से. इनफैक्ट के जो नेट शेयर हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट में होता है 60%, वो रिड्यूस हुआ है 5% से. दैट हैज बीन अकोमोडेटेड अराउंड 55%. जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमारा जो एक्सपोर्ट का मेजर पोर्शन है वो हमारा जो एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल है वो उसका पोर्शन ज्यादा होता है. सो दिस इज, और इम्पोर्ट जो हमारी कर्टेल हुई है, वी आर आई मीन प्रेसिंग इम्पोर्ट साइड, particularly non-essential items. State Bank have been very, I mean, curious about these things and overall banking sector. और हमारी जो इकोनॉमी है वो, हम जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, हमारी फूड में अगर एक्सपोर्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो इंपोर्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट में फूड जो है वो डिक्रीज हुई है. तो ये एक ओवरऑल हमारा जो है स्टैट्स हैं. अच्छा, इसके साथ एक दो और चीज़ें हैं. हमारा बेसिकली एक, आई मीन आई कैन, आई एम श्योर दैट कि अभी काफ़ी सारे जो हमारे ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ वेबिनार पे भी होंगे, या बाकी सबके लिए भी, कि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है ये ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years और 6 years, ये इन्हीं नंबर्स के इर्द गिर्द ही इवॉल्व हो रही है. लाइक इट हैज बीन बिटवीन 23-24 बिलियन, 25-30 बिलियन, 31 बिलियन. हमने 32 बिलियन को हमने टच किया था 2021 में, लेकिन हमारी इंपोर्ट सब्सिक्वेंटली 70 बिलियन से क्रॉस हो गई थी. तो ये हम इसी ब्रैकेट में ही हैं. तो ये एक्चुअली हमारे लिए जो मेन मेजर जो एरिया ऑफ कंसर्न है, या जो एक ओवरऑल सिचुएशन है हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की, क्योंकि द मेजर पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द करंट अकाउंट डेफिसिट, वन ऑफ द मेजर पोर्शन इज import export of merchandise import export. Although there are so many other factors are also involved, we will be discussing them into our next slide. But जो export import की मर्चेंडाइजिंग फैक्टर है वो इसमें बड़ा, तो हम इसी में क्यों घूम रहे हैं. अगर हम एज कंपेयर इसमें जो एक उससे भी, अगर हम एज कंपेयर लाइक अगर हम चाइना या यूएसए की तो बात, या जर्मनी की तो नहीं करते, बिकॉज चाइना हैव ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट नंबर, आई मीन मोर देन द 3 trillion US dollar. USA themselves have more than 2 trillion US dollar exports. Germany on the third number is with 1.7 trillion US dollar export. India, you can see the merchandising export of India is around $500 billion, but India has been phenomenally, I mean, performed in the sector of IT export services. Their accumulative export of the merchandising goods and IT sector good is around 770-80 billion. Now, there is one other important factor, which, I mean, the matter of concern, or which is, I believe this is one of the reason, is the export to the GDP ratio of the countries. I mean, the countries export number, which I have just highlighted, like China, USA, Germany, India, they have a very decent export to their GDP ratios. Although GDP, when you are discussing about the GDP, there are certain other factors are involved as well. The size of the economy, the population of the country, the capacity, and etc. That is a separate topic. But the crux of the point is that if the China, USA,
in fact, even India, they all have more over 20% their export contribution in their overall. I mean, their GDP to export contribution is over 20%. But on the other side, even and Pakistan have its, I mean, even it has crews. We have if we have the GDP around 750 billion US dollar, then we have just 10% of the, you can see the 30 billion export displays that number, that we have hardly 10% contribution our GDP to export. That is the main area which, I mean, if right now, if this contribution of 10% just get double to, I mean, what other countries, so many countries are doing. It's mean Turkey have 38% their GDP to export sport. Italy have over 30% as well, Japan, and so many other countries. Even Bangladesh is slightly, if not slightly, even 13%, their GDP to export ratio is 13%. If we can go to I mean, just double the GDP to export ratio, so straight away our this export number will get into the 60 billion or around figures. So this is one of the key. So that was actually was I thought that these are some important facts which should be shared with you, with all of you. So now I will be moving to the next slide. This is another factor. This is a step ahead from the trade number, as I expressed earlier, कि जो ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो मर्चेंटाइजिंग ट्रेड है, वो एक उसका एक हिस्सा है ओवरऑल आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन का. सो द नंबर्स जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर मई तक के हैं, जिसमें हमारा जो डेफिसिट है, अगर इफ यू कैन सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, द टोटल क्रेडिट एंड डेबिट, there is the total credit is around 66 billion US dollar, and the debit is 66.4 billion. So at the I mean, till May, we were having around 400 to 450 million current account deficit. Now this current account deficit consists of other things as well, which includes the export of merchandising goods, export of IT services, then other export of services, and in and the remittances, inward remittances, outward remittances. So, but State Bank will update this number by, I mean, the updated number for the fiscal year 2023 to 2024 will be available by 18 July, a maximum by the 18 July by the State Bank Pakistan. But I mean, having been the number of July to May, वी कैन, और क्योंकि हमारा जो जून का महीना था, वो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट भी हमारी स्लाइटली बेहतर थी. जो हमारा नंबर्स मई के थे, उससे बेहतर थी हमारी जून की एक्सपोर्ट भी. और जो इनवर्ड रेमिटेंसेज हैं, वो रिकॉर्ड ज़्यादा आई हैं, ड्यू टू एक तो ईद, द मंथ वाज, जून वाज द मंथ ऑफ ईद. So inward remittances ज़्यादा थी. तो we can right now I cannot share with you the exact number with you, but around this will be 300 to 400 or even more than this into the current account surplus when we will be have the number of June with us. So this was actually these two slides were particularly because we are discussing towards the modalities or again the structure of export. So I thought this is very important to first we should look into it, where we are standing statistically, and so that's why I included these both topics, the export import numbers, the balance of payment position. Now this is actually export financing schemes which ओके. ये आपको पता है कि स्टेट बैंक जो है, वो तमाम जो है, अब काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं, ओवरऑल स्कीम्स जो हैं, अभी मैं एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में जैसे ईएफएस है और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है. ये स्टेट बैंक ने 2007 में लॉन्ग एलटीएफएफ जो है वो स्कीम लॉन्च की. फिर फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 2010 में एक स्कीम दी, एसपीपी फाइनेंसिंग फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी 2019 में स्कीम स्टेट बैंक ने लॉन्च की. मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसएमई के लिए 2010 में रीफाइनेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्राइजेस, अगेन 2017 में रीफाइनेंस स्कीम फॉर वर्किंग कैपिटल
फॉर SMEs अगेन 2017 में एक स्कीम दी है, रीफाइनेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्पेशल पर्संस 2018 में, और SME आसान फाइनेंस स्कीम 2021 में दी है। और इसके साथ साथ जो कोविड में जो कुछ स्टेट बैंक की पर्टिकुलर 2022 में 3 स्कीम्स ऐसी थी, सैलरी वेजेस की, एक टर्फ की, एक कॉम्बैटिंग कोविड की, जो स्टेट बैंक ने टेम्परेरीली लॉन्च की थी। तो ये एक ओवरऑल स्कीम्स थी जो स्टेट बैंक जो है वो थ्रू दी बैंकिंग सेक्टर, ये अपने जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये ऑफर करता रहता है। नाउ इन पर्टिकुलर टू द एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम्स, स्टेट बैंक की जो इन तमाम स्कीम्स का जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया या इनको रिवाइज किया, डेफिनेटली आपको इन सब स्कीम्स के बारे में आइडिया होगा। इन सब स्कीम्स में जो सबसे लार्ज नंबर है वो है एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम का। जो वॉल्यूम है, जो एक्सपोयर है, वो इसका सबसे ज्यादा है। ये एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है ये ना सिर्फ इसका नंबर ज्यादा है, बल्कि ये सबसे जो है वो आई मीन पायनियर स्कीम है। इसका जो क्वांटम है आप ये समझ लीजिए कि बाकी तमाम स्कीम्स जो हैं वो इसके ओवरऑल क्वांटम के दे आर बिटवीन 30 to 40%। रेस्ट ऑफ द आई मीन जो द क्वांटम इज कवर्ड बाय द एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम्स व्हिच इज ऑफर्ड फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेस। इसकी आगे जो फर्दर जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम दो हिस्सों में है, शॉर्ट टर्म के लिए EFS स्कीम है 180 डेज के लिए मैक्सिमम टेनर के लिए ऑफर कर रहा है स्टेट बैंक, और LTFF जो है दिस इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 3 years 5 years अप टू 10 years तक जो है वो स्कीम को जो है वो स्टेट बैंक ऑफर कर रहा है अपने एक्सपोर्टर्स के लिए। अच्छा, इसमें बेसिकली जो अब नाउ आई विल बी आई मीन जो मेरी डिस्कशन है अब मैं इसको लेके आऊँगा एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम की तरफ पर्टिकुलरली। अभी पहले मैंने आपसे स्टेट बैंक जितनी मल्टीपल स्कीम्स कर रहा है ऑफर, उनका जिक्र किया। फिर उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटम है वो EFS का है। EFS में जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं उनमें पार्ट 1 उनमें जो है वो शॉर्ट टर्म में 180 डेज तक के लिए है, और फिर लॉन्ग टर्म में 10 years के लिए। Now, particularly, we will be discussing about the short-term scheme, which is for 180 days. ये जैसे मैंने आपको बताया है पहले कि सबसे पायनियर स्कीम है, 1973 में स्टेट बैंक ने इसको लॉन्च किया था एक्सपोर्टर्स के लिए। ये 2 पार्ट्स में बेसिकली ऑपरेट करती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 इज़ अ ट्रांजैक्शनल बेस्ड स्कीम, और पार्ट 2 जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड स्कीम है। आई मीन सिर्फ इसी को कवर करना, बिकॉज वी हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट्स, वी हैव अ लिमिटेड टाइम फॉर दिस वेबिनार। सो इस सिर्फ इस स्कीम को कवर करना, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, जो EFS पार्ट 1 ट्रांजैक्शन बेस्ड इस तरह से होती है कि जो एक्सपोर्टर है, कोई भी एलिजिबल एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान से करना चाह रहा हो, उसके पास कोई LC है, कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मा इंडेंट है पर्टिकुलरली, तो उसके अगेंस्ट वो फाइनेंसिंग ले सकता है डिस्काउंटेड रेट्स पे। जो EFS स्कीम का डिस्काउंटेड रेट है उसके ऊपर वो फाइनेंसिंग ले सकता है, और अपॉन रियलाइजेशन ऑफ दैट फंड्स उससे फिर वो उसको नॉक ऑफ कर देता है। ये जो पार्ट 1 है, ये दोनों तरह से प्री शिपमेंट में भी फैसिलिटी अवेलेबल है, पोस्ट शिपमेंट में भी अवेलेबल है। प्री शिपमेंट में अगर एक्सपोर्टर को अपने ऑर्डर को तैयार करने के लिए कोई फंड्स की सपोर्ट चाहिए, तो वो उसमें भी वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है। और इसी तरह से पोस्ट शिपमेंट में अगर वो अपनी प्रोसीड्स रियलाइजेशन होने का, क्योंकि नॉर्मली इंटरनेशनली जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें क्रेडिट इन्वॉल्व होता है, क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व होता है, तो उसकी पेमेंट की एग्जैक्ट मैच्योरिटी डेट तक वेट करने की बजाय जो एक्सपोर्टर है उसको इस फाइनेंसिंग स्कीम को भी अवेल कर सकता है, ताकि वो अपना जो एक्सपोर्ट साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, टू मीट देयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर आई मीन नेक्स्ट शिपमेंट्स, तो वो उन पैसों को जो है इसको ले सकता है, अवेल कर सकता है। इसी तरह से जो पार्ट 2 है परफॉर्मेंस बेस्ड है। परफॉर्मेंस बेस्ड जो एलिजिबल एक्सपोर्टर्स हैं, आई मीन दे डबल ई स्टेटमेंट जो है वो अपने पूरे साल की जो फाइनेंशियल ईयर है उस परफॉर्मेंस को डिक्लेयर करते हैं, और उसमें से जो फाइनेंसिंग एंट्रीज जो है वो अब, और उसके अगेंस्ट उनको एक अप्रूव्ड लिमिट एलोकेट स्टेट बैंक कर देता है, जिसके अगेंस्ट वो किसी भी कमर्शियल बैंक से जो एडीज हैं स्टेट बैंक के, वहाँ से वो इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं। ये अनलाइक टू पार्ट 1,
क्योंकि पार्ट वन एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ये एक परफॉर्मेंस बेस है। तो ये एक्सपोर्टर्स जो हैं परफॉर्मेंस बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है अभी जैसे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो भी ट्रेड में या इनफैक्ट हमारे तमाम एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट की हमने बात की, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट की सपोर्ट, एक्सपोर्टर्स के लिए जो प्रिविलेजेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम। सो इसका जो एक इसकी मॉडलिटीज़ हैं या जो इसका जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें बेसिकली अभी रिसेंटली जो है वो ट्रांजिशन हुई है। ट्रांजिशन इस तरह से हुई है कि basically, as all of you are aware that we are into the IMF agreements, और हमें डिफरेंट इसकी जो मोडालिटी है इसको गवर्नमेंट ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ IMF चेंज किया है। इसको ये डिसाइड किया गया है कि जो स्कीम है ये, क्योंकि 1973 से ऑनवर्ड स्टेट बैंक इसको ऑफर कर रहा है, अब इस स्कीम को ग्रेजुअली, बिकॉज द क्वांटम ऑफ दिस स्कीम इज सो लार्ज, so during the phase out period of 5 years which have been already started in 2023, तो 5 सालों में जो ये स्कीम है ये मुकम्मल ट्रांजिशन जो है वो स्टेट बैंक से एक्सियम बैंक को जो है वो हो जाएगी। तो ये as I mentioned, under the IMF standby agreement, government of Pakistan committed to transition of this administrated EFS scheme from State Bank to Pakistan। तो ये उनकी जो एक दिस ट्रांजैक्शन सीक्स टू अलाइन विद द सब्सिडी डिसबर्समेंट विद फिस्कल पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब इसमें मेजर एक जो इसकी मोडालिटी में फ़र्क है वो हमें पता होना ज़रूरी है या उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो वो ये है कि इसमें बेसिकली जो स्टेट बैंक पहले ये स्कीम ऑफर कर रहा है, अच्छा, इस ये 1973 से लेकर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम एंड अगेन इसके अंदर इसकी मॉडलिटीज में आई मीन ये मॉडिफाई होती रही है। बाज़ों का इन अर्ली 2000s जो लोग ट्रेड में अगर अभी साथ अलाइन हैं, इफ दे रिमेंबर, तो स्टेट बैंक पहले भी इस पे एक परसेंटेज शेयर करता था 60, द अर्लियर इट वाज 50-50%, लाइक 50% वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, देन द अदर 50% कंट्रीब्यूशन बाय मेड द commercial bank, then it reduced to 70-30, then 80-20, and then gradually, if I'm not wrong, into 2011 or 2010, 100% financing was granted by State Bank of Pakistan, and onward till date 100% जो फाइनेंसिंग है इस स्कीम की वो स्टेट बैंक देता है। यानी कि जो अंडर द असाइंड लिमिट्स टू द बैंक, अब लिमिट्स जिस तरह से असाइन होती हैं वो, और दैट इज अनदर डिस्कशन टॉपिक। आई मीन बीइंग द ट्रेड गाइज, और आप इसको समझते होंगे कि जब एक बैंक को एक लिमिट असाइन हो जाती है तो फिर उस पैरामीटर्स में रहते हुए सब्सिक्वेंटली अपने एक्सपोर्टर्स को वो लिमिट्स बैंक ऑफर करता है, और फिर बैंक को एक्सपोर्टर को वो स्कीम फाइनेंसिंग दे के वो रीफाइनेंस इसको जो है स्टेट बैंक कर देता है फाइनेंशियली। अब इसकी मोडालिटी जो है वो इस स्कीम की चेंज हो गई है जिस तरह से अब ये ट्रांजिशन में आ रही है। अब इसमें डिसाइड ये किया गया है कि जो लिक्विडिटी ऑफ द फंड्स है वो कमर्शियल बैंक्स अपना यूज करेंगे खुद से, और उसमें लेकिन कमर्शियल बैंक्स को इसके लिए इनेबल करने के लिए कि वो उनके लिए इसमें जो इसकी सब्सिडी है वो रेट सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और क्योंकि इसका 1 साल का अभी जो ट्रांजिशन पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, नाउ वी आर इन द सेकंड ईयर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन पीरियड ऑफ दिस स्कीम, एंड आई मीन बाय द एंड ऑफ 2028 जून द कंप्लीट एक्सपोजर जो है वो स्टेट बैंक से जो है वो एक्सियम बैंक के पास इसका आ चुका होगा। तो अब इसमें अगर वन पॉइंट पे अगर मैं आप लोगों को एक की टेक अवे दूं इसका कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो स्टेट बैंक की EFS की जो स्कीम चल रही थी ट्रांजिशन से पहले, या इवन अभी भी वो पैरेलल चलेगी क्योंकि ट्रांजिशन जो है वो इन पार्ट है, फेज आउट प्लान में है, तो वो उसके अंदर फाइनेंसिंग स्टेट बैंक खुद दे रहा है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उसको मैनेज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स तक वो फाइनेंसिंग पहुंचे। While in the revised modalities of Axiom administered EFS scheme, इसके अंदर जो फाइनेंसिंग है वो कमर्शियल बैंक्स अपनी खुद यूज कर रहे होंगे और कर रहे हैं, लेकिन जो रेट सब्सिडी है, जो स्कीम रेट सब्सिडी है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, एंड एक्सियम बैंक जो है उसको दे उसको
जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, बीइंग द डिस्पर्सिंग एजेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो बैंक्स को आगे उसकी तरसील कर रहा है। तो इसके अंदर जो है इस चीज़ को अब इस चीज़ को मेक श्योर किया गया है कि जो एंड यूजर है, यानी कि जो एक्सपोर्टर है, उसको इससे इसकी इस रेट में कोई डिफरेंस ना आए, या इसमें कोई उसको उसके लिए मोडेलिटीज फॉर द एक्सपोर्टर्स आर सेम। और इसके आगे बल्कि स्लाइड में हमने इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया है कि इसके क्या जो बेनिफिट्स हैं, की बेनिफिट्स हैं, कि इसके क्या की बेनिफिट्स हैं, हम उसको जो एक्सपोर्टर्स भी उसको ले रहे हैं, और आगे जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए क्यों लुक्रेटिव है ये। देखें, जो इसकी जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो एक्सपोर्टर्स के लिए तो जो ईएफएस की सब्सिडी है, ईएफएस स्कीम की, वो दैट इज अलाइन विद द बेनिफिट्स ऑफ द एसबीपी ईएफएस स्कीम, के obviously if when they are getting the financing on the discounted rates, तो उनके लिए जो अपनी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उनको अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को, अपने ओवरहेड्स को वो उससे कवर कर सकते हैं, और अपनी जो इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड है उसमें अपनी जो कम्पिटिटिवनेस है उसको इंटैक्ट रख सकते हैं, और अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ा सकते हैं। एक एक्सियम एडमिनिस्ट्रेटेड स्कीम से जो एक बेनिफिट जो एक्सपोर्टर्स को पर्टिकुलरली अभी आया है, या आएगा, या आ सकता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें, क्योंकि अब लिक्विडिटी बैंक्स की इन्वॉल्व है, और जो उसकी सब्सिडी है वो गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट कर रही है। तो अगर इसका क्वांटम बढ़ जाता है, या इसमें कोई विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कोई और कुछ इसमें आई मीन एक कुशन है कि इसके ऊपर एक्सपोर्टर्स को मजीद कुछ प्रोवाइड किया जा सके। फिर जो बैंक्स हैं, बैंकिंग के लिए ये बड़ा एक अच्छी एक लिक्रेटिव प्रैक्टिस है, क्योंकि जो बैंकर्स हैं इस चीज़ को समझते हैं कि वाइल बैंक नॉर्मली जो है वो टी बिल्स के अंदर बैंक अपने एक्सेस लिक्विडिटी को डाल रहे होते हैं, गवर्नमेंट फंड्स में प्लेस कर रहे होते हैं, तो आई मीन utilizing their own liquidity into a very structured transaction, very secure transaction is I mean is sort of a very lucrative things, for very encouraging things for the banks as well. And in fact as I speak, कि बैंक्स ने इसको पहले साल की ट्रांजिशन में बहुत एक पॉजिटिवली इस चीज़ को अडॉप्ट भी किया है, क्योंकि जो सब्सिडी ऑफर की जा रही है वो बैंक का जो प्रपोर्शन है, आई मीन इट्स ओवरऑल 5% सब्सिडी जो बैंक्स को जो है वो ऑफर की जा रही है, तो स्कीम रेट इज रिमेन द सेम विद द एक्सपोर्टर। सो ये बैंक्स के लिए एक बेनिफिट है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो लिक्विडिटी है उसको एक स्ट्रक्चर और एक सिक्योर फाइनेंसिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, रेदर देन पुटिंग इनटू जस्ट इन टी बिल्स और दूसरे एवेन्यूज पे। दिस इज सॉर्ट ऑफ अनदर एवेन्यू which is more secure. Now, actually, this is a important thing कि हमने अभी तक ये पिछले 20-25 मिनट में हमने ये देख लिया कि हम कैसे हमने अपनी हम एक्सपोर्ट पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ क्या है, या हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी इंपोर्ट का बिल क्या है, हमारा जीडीपी, एक्सपोर्ट टू जीडीपी सपोर्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। फिर स्कीम्स को हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या स्कीम्स ऑफर हो रही हैं। अभी रिवाइज जो है वो मोडेलिटीज़ हमने डिस्कस कर ली कि जो सबसे बड़ी फाइनेंसिंग स्कीम है उसकी रिवाइज मोडेलिटीज़ किस तरह से ट्रांजिशन पीरियड में चल रही हैं। अब बेसिकली इन सब चीज़ों के डिस्कशन के बाद जो मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन है वो ये है कि अब हम अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें कैसे। कि सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि अगर हम अपनी जीडीपी टू एक्सपोर्ट रेशियो जो है वो 10% या 20% पे ले जाएं तो हमारा जो एक्सपोर्ट नंबर है वो डबल हो जाता है। अब इसके अंदर अब बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स के अंदर फिर इस पे इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, जो कि अभी आई मीन जो गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान है विच इज़ कि हमने अपने एक्सपोर्ट नंबर्स को गवर्नमेंट ने डबल करना है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप देखें अब आई विल आई मीन
अगर आप सक्सेस स्टोरीज देखें डिफरेंट इकोनॉमीज की, अगर उसमें आप वियतनाम को देखें, साउथ कोरिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, इवन वियतनाम जो है, आई मीन इन 2000s इट्स, आई मीन एक्सपोर्ट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाकिस्तान, बट आफ्टर दैट, अब अगर राइट नाउ या अगर हम 2022 तक के नंबर्स में देख रहा था कि अब उसकी जो टोटल है वियतनाम की एक्सपोर्ट है, वो पाकिस्तान का टोटल जीडीपी से भी ज्यादा इंक्रीज करके गया। हम जो है वहीं के उसी ब्रैकेट के अंदर ही मोर और लेस हैं। और इम्पोर्टेंटली अगर आप आई मीन वियतनाम की एक जो एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरी है उसको अगर गो थ्रू करें, तो उसमें से डिफरेंट जो की नोट्स हैं या जो क्रक्स हैं वो सामने आएंगे। एक तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन, जैसे ये सेक्टोरियल फोकस हमने लिखा है, तो डाइवर्सिफिकेशन भी की है सेक्टोरियल फोकस के ऊपर, कि अगर 2000 के अंदर व्हेन वियतनाम वाज लाइक द कंडीशन लाइक वाज इक्वली वेल बैलेंस विद पाकिस्तान, तो उस वक्त जो उनके एक्सपोर्ट की परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, आज वो नहीं है। आई मीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इस चीज़ को एवेल्युएट किया है कि हमारी की जैसे आईटी में, टेक्नोलॉजी में, आई मीन दे हैव जस्ट कंट्रीब्यूटेड वाव, और उन्होंने अपनी आईटी को, अपनी आईटी सर्विसेज को, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को, इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपेंड किया है, और आई मीन अभी उनकी एक्सपोर्ट्स के नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसी तरह आप उससे ये है कि जो सेक्टर फोकस है वो होना बड़ा ज़रूरी है, कि हमें ये आइडेंटिफाई करके, कि जैसे हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो हमारी एक्सपोर्ट में जो मेजर पोर्शन हमारा टेक्सटाइल का है, एग्री का है, हमें आई स्टिल बिलीव आई मीन कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमें उसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हमारी जो उसके साथ साथ इनोवेशंस हैं वो बड़ी ज़रूरी है। और मॉडर्न डे आईटी एक्सपेंशन, ऑब्वियसली उसके अंदर ऑल दो कि हमारी आईटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी हो रही है, उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज भी है, बट आई मीन rapidly we need to cop up with the numbers which the other developing countries are coping up with the export of ITs। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरीज देखें, तो जब 19 आफ्टर 19 जब बांग्लादेश 1971 के बाद वाज वन ऑफ द पोरेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अच्छा बांग्लादेश का मॉडल इज डिफरेंट दैन द वियतनाम। बांग्लादेश में ऑल्दो के बांग्लादेश में हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोर्टिंग फॉर द जूट, टी, सी फूड्स, बट उनका जो मेन फोकस हमेशा से रहा है वो टेक्सटाइल पे रहा है। उन्होंने अपनी सारी जो इंडस्ट्री है, अपनी सारी जो फोकस है वो टेक्सटाइल सेक्टर पे रखा है। उनका जो इवॉल्व होने का या जो सक्सेस स्टोरी है, दैट इज डिफर देन द अदर कंट्री व्हिच आई वाज डिस्कसिंग बिफोर, वियतनाम। आप और बहुत सारी ऐसी हमारे पास ग्लोबली इकोनॉमिक एक्सपोर्ट की सक्सेस स्टोरीज हैं। साउथ कोरिया इज आल्सो वन ऑफ देम, कि उसके अंदर जब साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया वाज आई मीन सेपरेट, ये 1959 में या 1960s में आई गेस ये जब हुए, तो जो साउथ कोरिया पोजीशन वाज वेरी वल्नरेबल, जो तमाम इंडस्ट्री है वो नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री थी, तो कैसे उन्होंने अपनी चीज़ों को इवॉल्व किया है, एक्सपोर्ट को एनहेंस किया है। तो इसी तरह से हमें इसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है कि हम भी पहले अपने आइडेंटिफाई सेक्टोरियल सेक्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें, फिर हमारी तमाम जो ब्लॉकचेन है फ्रॉम A to Z, वो फिर उस सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि उसमें से कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हो, और अदर देन दैट कुछ जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो उसको परफॉर्मेंस के अंदर किसी ना किसी तरह की हर्डल आ रही हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो जैसे एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम्स हैं, अगर कोई इनमें भी एक टारगेट, इसमें भी कुशन है स्टिल, कि हम इसको बेहतर तरीके से मजीद कैपिटलाइज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से मजीद देख सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में इसमें आई मीन मजीद इसका क्वांटम बढ़ा सकते हैं, और पर्टिकुलरली जो वैल्यू एडेड सेक्टर है उसके अंदर उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। रेदर देन दैट कि अगर आप कोई रॉ मटेरियल गुड्स हैं उसकी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उस पर कोई इंसेंटिव्स भी ले रहे हैं, तो वो एक डबल हिट है आपकी इकोनॉमी को, कि एक तो आप वैल्यू एडेड नहीं कर रहे, फिनिश गुड्स नहीं भेज रहे, रॉ भेज रहे हैं और उस पे भी सब्सिडाइज ले रहे हैं। फिर अगर आपका लेट्स सपोज फॉर अ प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एग्जांपल, अगर एक मेरा एक्सपोर्टर है मुल्क में और वो पिछले 20 साल से किसी एक ही एक्सपोर्ट इंपोर्टर के साथ, लेट्स सपोज बायर उसका
फॉर मैंगो वॉलमार्ट के अभी या वट एवर, आई मीन किसी के साथ वो पिछले 15-20 साल से अपनी एक्सपोर्ट पे काम कर रहा है, और वो उसी बायर के ऊपर जो है वो जो सब्सिडी है वो या फाइनेंसिंग है, सब्सिडाइज डिस्काउंटेड स्कीम्स अवेल कर रहा है, तो वो इसको भी थोड़ा सा आई मीन चेंज किया जा सकता है कि अगर एक्सपोर्टर्स को प्रमोट किया जा सकता है और किया जाएगा कि अगर वो अपनी रीच बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेडिशनल मार्केट से नॉन ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाते हैं, अपना फुटप्रिंट बढ़ाते हैं, तो वो अल्टीमेटली उनके जो इंसेंटिव्स हैं या उनमें जो स्कीम्स हैं वो डिफरेंट, उसमें लार्जर, दे शुड बी अवेल अ लार्जर बेनिफिट। और फिर जिस जिस तरह से वो उनकी ट्रेड मैच्योर होती जाए, तो फिर जो फाइनेंसिंग सपोर्ट है या जो सब्सिडाइज सपोर्ट है वो उनसे कम होके, और वही क्वेश्चन जो है वो न्यू एक्सपेंशंस की तरफ जो जो डेवलपिंग एक्सपोर्टर्स हों उनको कंट्रीब्यूट किया जाए। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ एक ऐसी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो है उस चीज़ पे जा सकते हैं। एसएमई सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ अस वेरी आई मीन अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। और इवन स्टेट बैंक ने भी, अभी जब मैंने आपको स्कीम्स के नाम बताए थे तो बहुत सारे आपने एसएमई से रिलेटेड सुने होंगे अभी। और सरप्राइजिंगली अभी आई मीन एज ऑफ द ईयर हमारा 50% सेक्टर एसएमई के तो ऐसा है जो एक्सपोर्ट में जीरो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं पा रहा वो एक्सपोर्ट्स के अंदर। अगर उसकी जो वो जीडीपी का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन वो जीडीपी टू एक्सपोर्ट का हिस्सा है नहीं है। तो हमें अपने एसएमई सेक्टर को जो है वो एक्सपोर्ट में इनेबलर हम कैसे ला सकते हैं, ये उसको क्या हम इनेबलर्स प्रोवाइड करें कि वो अपना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर ऐड करे। दैट कुड बी अनदर थिंग। देन ऑलरेडी डिस्कस जो आईटी एक्सपोर्ट है उसको हम फास्ट ट्रैक के ऊपर देख सकते हैं, उसके अंदर स्टिल अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि हम उसके ऊपर काम करें। जैसे मैंने बताया कि इंडियन जो आईटी एक्सपोर्ट है दैट हैज बीन रीचिंग अराउंड 300 बिलियन यूएस डॉलर, और हम उसको कैसे अपनी देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, काम हो रहा है लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन के जिसके ऊपर हम काम करके अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर आपकी जो एक और इशू जो है वो हमारी जो आमिन के जो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरती जा रही है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें अपने दूसरे अभी कंपीटिंग कंट्रीज के साथ, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि अगर 60s में स्टार्ट होती हैं काम करना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, उनका आउटपुट बढ़ता है, और वो बहुत और ज़्यादा जो है वो वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक दिस। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आपको वेरी फ्यू, कुछ उंगलियों पे गिनने को ऐसी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी कि जिन्होंने बिजनेस जो टाइम के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। वरना हमारे जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द मेजर फर्म, कुछ ऐसी फर्म जो 1960s में 70s में बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ थी, शायद आज वो उनमें से बहुत सारी तो ऐसी हैं जो आज बंद हो चुकी हैं, वो काम ही नहीं कर रही हैं। तो हमारी जो एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म्स हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इनोवेट करना है टाइम के साथ साथ चीज़ों में, ताकि आपकी जो टारगेट मार्केट है उसके अंदर आप सही तरह से पेनिट्रेट कर सकें। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें उसके ऊपर काम करना है। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि हम अपने इनोवेशंस लेके आए। अगर हम कि वो कहते हैं ना कि आप किसी से अगर साइज में, इकोनॉमी में मुकाबला नहीं कर सकते तो आप स्पीड में कर सकते हैं, कि आप उसमें अपने वो कैसे आ सकता है, इनोवेशन से ही आ सकता है कि आप अपने कंपटीटर से बेहतर जो है वो प्रोवाइड करें। इस पॉइंट के ऊपर मैं जैसे बात, अगर आप इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि आप पाकिस्तान की जो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ हैं जो जा रही हैं बाहर, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो बांग्लादेश से ज़्यादा हैं। इफ़ यू काउंट इन नंबर्स, if for an example is if for this is not the exact number, for an example Bangladesh is exporting 2000 commodities to the world. We are exporting more than the 2000 commodities, but जो उसकी जो प्राइस है या जो उसकी कंपेटिबिलिटी है
या जो उसकी डिमांड है, हम उसमें हम ज़्यादा भेज के भी कम पैसे जो है वो ले रहे हैं, और वो कम भेज के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं. नाउ दिस इज what innovation, research, development, compatibility with the requirement in enhance the value of your products. This is very important thing. And most of the all जो 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 फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब आपकी जो फर्म्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी कॉन्टिन्यूटी सही चल रही होगी, एक्सपोर्ट बिजनेस आपका बिजनेस सही चल रहा होगा, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्योंकि जब भी अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का अगर ग्राफ देखें, तो अगर आप जो वो उन कंट्रीज के अंदर ग्रेजुअली बढ़ रहा है जिन फर्म्स की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन भी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, और अदरवाइज जहाँ पे प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस गिर रही है, वहाँ पे जो एफडीआईज हैं वो भी गिर रही हैं. जैसे मैंने वियतनाम का एक सक्सेस मॉडल आपसे शेयर किया था, उसमें एक सबसे बड़ा रोल एफडीआईज का है कि कैसे एफडीआईज जो हैं वो उन्होंने रोल प्ले किया है स्ट्रेंथन करने के लिए. तो जो एफडीआईज जो है वो खुद से नहीं आएंगी. आई मीन जो बायलैटरल लोन्स या जो आप बाकी चीजें कर रहे होते हैं, इट्स अ टाइम बीइंग, आई मीन एक उसका हल है जो एक्चुअल जब तक इन्वेस्टमेंट आएगी और वो कैपेसिटी प्रोडक्शन बिल्डिंग आपके कंट्री में बढ़ेगी, तो फिर उस चीज़ का जो है ये मामला हल होगा. ओके, ये बेसिकली एक आई ट्राइड कि मैं ये ट्रेड से रिलेटेड, एक्सपोर्ट स्कीम से रिलेटेड और वे फॉरवर्ड जो है उस पे डिस्कशन आप लोगों के साथ कर सकूं. नाउ आई मीन एक्सियम जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाउ एक्सियम्स ग्लोबली ऑपरेट ना. जो एक्सियम्स हैं ये ग्लोबली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स हैं, ये कंट्रीज के आई मीन ओवर 52 कंट्रीज ऑलमोस्ट हैं जिनमें एक्सियम्स एग्जिस्ट करते हैं. मैंने ये आई मीन कॉन्टिनेंट वाइज ये आगे उनकी मेंशन भी हैं, लाइक द अदर कंट्रीज. पाकिस्तान आल्सो हैव देयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान. तो बेसिकली एक्सियम बैंक जो का रोल है, और वो ये है कि वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने तमाम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एक्सपोर्टर्स को, एक जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है या जो एवेन्यूज हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं. क्योंकि एक ग्लोबल नेटवर्किंग है, तो बहुत ट्रेड के अंदर ख़ास तौर पे अपनी इस प्रेजेंस के साथ, तो काफ़ी जैसे अभी हमने एफडीआई की बात की है, जैसे अगर ट्रेड के अंदर एलसीज हैं, कोई उनकी फॉरेन कंफर्मेशंस हैं, कुछ गारंटीज हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी हमने ये तो बात की पहले कि एक्सपोर्ट इनहेंस कैसे हो सकती है, कि जो एक्सपोर्टर है वो अपनी अपनी बायर्स की रीच बढ़ाए, बायर्स नंबर ऑफ बायर्स बढ़ाए, अपनी बकेट बढ़ाए, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में जाए, ट्रेडिशनल को छोड़े, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे, एक्सपेंशन करे. लेकिन वो कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो इनेबलर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने में जो एक्सियम्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑल अराउंड द ग्लोब. इवन हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं इनमें अभी आई गेस 1987 में या लेट अर्ली 90s में एक्सियम ऑपरेट हुआ था इंडिया में. तो आई मीन बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत सारे ऐसे इनेबलर्स प्रोवाइड किए हैं इकोनॉमी को, कि जिसने बड़ा बड़ा एक जो है इन्हेंसमेंट करने में, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इसी तरह से ये एक एक्सियम, बेसिकली एक्सियम्स जो हैं वो दे डू नॉट compete with the, in simple words, they do not compete with the commercial banks or in any country, and particularly in Pakistan, and in fact in any country, कि वो but they are there to support them, to provide them the enablers. तो वो उसके जहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर या एक थोड़ा जाने से रिलेक्टेंट होता है या उसे सपोर्ट चाहिए होती है, तो उसको जो है वो एक्सियम्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं. ये इस तरह से सपोर्ट करते हैं, और इसी पैरामीटर्स के ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला जो एक्सियम पाकिस्तान है वो भी अभी, क्योंकि दैट हैज़ बिन अभी ये भी 2022 में जो है एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिन पे काम चल रहा है, और वक्त के साथ साथ जो है वो इस तरह के इनेबलर्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगा अपने एक्सपोर्टर्स को, अपने अदर स्टेक होल्डर्स को, जिससे जो हमने टारगेट्स डिस्कस किए हैं उनको अचीव कर सकेंगे.
ये जो अभी हमने डिस्कस किया है कि नॉर्मली उन्हीं की एक्सपेंशन है या उन्हीं की एलेबोरेशन है कि कोऑर्डिनेट विद द स्टेक होल्डर्स, फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स लेने के लिए। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अच्छा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स, ये थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आप लोगों को अगर समझा सकूं। अब एक्सपोर्टर अगर एक नॉर्मल एक्सपोर्टर है तो उसके लिए एक नई मार्केट में जाके काम करना एक बिट रिस्की होता है, या वो अपनी उसका सबसे बड़ा रिस्क होता है कि मेरी जो रिसीवेबल्स हैं वो कहीं उनकी सिक्योरिटी का क्या स्टांस होगा। तो बेसिकली उसको रिसीवेबल्स को सिक्योरिटी देना या उनको इंश्योर करना, तो आई मीन दैट इज सॉर्ट ऑफ एन इनेबलर, कि जो एक्सपोर्टर को उसकी जब रिसीवेबल्स इंश्योर हो जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा बनिस्बत नए घरों में काम करने के लिए, बाहर नई मार्केट में काम करने के लिए, और नई जगहों पे काम करने के लिए, वंस द एक्सपोर्टर हैव देयर रिसीवेबल सिक्योरिटी। सो आई मीन ये एक सेक्टर है जिसके ऊपर वी हैव द प्रोडक्ट्स, आई मीन इवन अदर एक्सियम्स हैव द प्रोडक्ट्स। सो इस तरह से हम फाइनेंस जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके एक्सपोर्टर्स को रीच करके, तो हम उनको इस तरह के इनेबलर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। फिर इसकी क्योंकि एक ग्लोबल नेटवर्किंग है तो फिर एक रीच बढ़ सकती है। एक्सपोर्ट जो कि ट्रेड में मुख्तलिफ जगहों पे आती है, तो वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट्स के अंदर जो हैं एक्सपोर्टर के इंपोर्टर के साथ, उनके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एक और करता है। आई मीन जो फाइनेंस, फिर अभी बहुत सारे एक्सियम्स ऐसे हैं जो लैंडिंग में, डायरेक्टली लैंडिंग में भी हैं ग्लोबली, तो वो उसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो है कील मेनली जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो भी इनेबलर्स होते हैं, तो वो हमेशा उसको जो है सपोर्ट करता है एक्सियम के, ताकि एक एक इनेबलिंग और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट जो है वो दे सके अपने एक्सपोर्टर्स को। सो दिस वाज एक्चुअली ऑल फ्रॉम माय साइड, जिसमें मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट करंट ट्रेड करंट सिचुएशन से लेकर, स्कीम्स से लेकर, और वे फॉरवर्ड एक्सियम ट्रांजिशन, हाउ एक्सियम्स ग्लोबली ऑपरेट, उन तमाम चीज़ों से जो है वो एक आप लोगों को जस्ट गिव अ ब्रीफ आई मीन वॉक थ्रू ऑफ दिस ऑल थिंग्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Madiha, now it's over to you, and please let me know when if Thank you, we sir. questions Thank can you, be. Muzammil Saab, for this really very comprehensive presentation. We have just one question in our Q&A session, and I see that there is just one question. So if any other people have any other question, please feel free to type in your chat box and we will respond to you. Okay, now the first question was it's Usman from HPL, I guess. Uh, so he was asking that can you just suggest him some few guidelines because he has just started his career in HPL trade department. So being a beginner, can you share what kind of guidelines he has to go through? Uh, I mean, this is as simple. What was the name of this? I mean, candidate? Osman, I'm sorry, I have lost track Usman. of it. Osman, I guess. Usman. So it's very simple. I mean, in one sentence, I will ask him to work hard. So, but as he's at the very start of his career, so first of all, if you want to continue his career in the field of trade, so ट्रेड बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस के अंदर जो आप काफ़ी सारे ट्रेड जो बैकग्राउंड के इस वक्त ऑडियंस में अगर लोग हैं वो इसी को सेकंड करेंगे, जो सॉर्ट ऑफ इसमें क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में आपके ऊपर लॉ ऑफ लैंड भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि आपका रेगुलेटर बैठा हुआ है स्टेट बैंक। आपने उसकी पॉलिसीज को भी, लॉस को भी देखना है, और उसी के अंदर जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है उसके अंदर आपने चीज़ों को रेगुलेट लेके चलना है। ऑन एंड सेम टाइम ऑन द अदर साइड, जब आप क्योंकि ट्रेड आप आइसोलेशन में तो कर नहीं रहे ना,
जब आप ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनली, तब आपको यूसीपी 600 और अदर देन दैट जो इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको भी मीट करना है। तो ट्रेड इज सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल। सो TML इसमें as well. जी टीबीएमएल के एस्पेक्ट्स एज वेल हैं। सो आई विल एडवाइज नॉट ओनली टू उस्मान, टू अदर, if trade I mean personals are with us, कि जो ट्रेड रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, ख़ासतौर पे जो स्टेट बैंक में स्टेट बैंक का एफई मैनुअल है, चैप्टर 12 कवर करता है एक्सपोर्ट साइड को, चैप्टर 13 जो है वो एक्सक्लूसिवली इंपोर्ट को कवर करता है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस हैं। फिर टीबीएमएल का फ्रेमवर्क है स्टेट बैंक का 2019 का, 14 अक्टूबर का आई गेस, तो वो, और उसके अलावा टाइम एंड अगेन इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये बेसिक, आई मीन वंस यू शुड नो कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, आप क्या करने जा रहे हैं बिफोर डूइंग इन टू। और जो रिजल्ट्स हैं या जो चीज़ें हैं वो ओवर द नाइट नहीं आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, कि किसी भी बिगनर को पहले तो हार्ड वर्क करना पड़ता है कि अपनी वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस लेवल को क्रिएट करे। और टाइम के साथ साथ डेफिनेटली तो वो जो ट्रेड से रिलेटेड गाइडलाइन है, जो लिटरेचर है, वो उसको थ्रू करें, मुख्तलिफ मॉडल्स को जो है वो स्टडी करें। तो आई बिलीव कि ये इनको जो है काफ़ी फ़ायदा दे सकता है, इनको भी और किसी भी और ऐसे कैंडिडेट को भी जो ट्रेड में अपना कैरियर जो है वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं। Thank you, sir. सर नाउ आई हैव वन क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा हमें एलेबरेट किया। सर हम जब देखते हैं चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड पार्ट 2 इसका, सर इसमें आप देखें कि चाइना इज बेनिफिटिंग मोर, एंड इनफैक्ट आई हैव ऑब्जर्व दैट चाइना इज benefiting more rather than Pakistan. Do you agree with me? Do you second me or not? जी जी, आप ठीक कह रही हैं। Okay. In such scenario, how can this thing be like, how can Exim Bank help us in this scenario? Because I have seen the list जिसमें उन्होंने अपनी जो जो वो चाइना एक्सपोर्ट करता है, it's purely seems like it's more towards their benefit, more inclined towards their benefit. So देखें how can Exim Bank can play a role in it? जी, अच्छा देखें, आपके जो रुबाब हैं, मदीहा, आपके जो क्वेश्चन है उसके दो हिस्से हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले अगर जो चाइना है और चाइना के जो स्टैट्स हैं या जो चाइना की इकोनॉमी है, विद हैविंग द एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, Yes. और जो उसकी जो साइज ऑफ द इकोनॉमी है, वो इवन ही इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ग्लोबली। सो उसको आई मीन आप अगर उसके साथ आप जब निगोशिएट भी करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, सो आप सबसे पहले, दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि हम क्यों कहते हैं कि हमारे एक नेबरिंग कंट्री जो है, जो हमारे से साइज में बड़ा है, उसकी मार्केट बड़ी है, वो चीज़ों में उसके तरफ जो रुझान है या चीज़ें हैं वो और तरह से होती हैं, बिकॉज the basic fundamental is that they are a big market. Unless we are I mean produce our muscle strength, then we can negotiate in our terms and condition. आपको अगर याद हो 2022 में जब हमने हमारी वी वर इनटू स्वेयर क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और हमने अपनी इंपोर्ट्स को बंद कर दिया था, जब 84 85 84 86 87 एचएस कोड की रिस्ट्रिक्शंस विद सब्जेक्ट टू स्टेट बैंक अप्रूवल्स हमने प्रोसेसिंग की। इंडस्ट्री के लोग उस चीज़ को सब समझते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जिसको हमने फूड आइटम्स को भी बंद कर दिया ना, हमने उसकी इंपोर्ट भी बंद कर दी, क्योंकि ग्लोबली अभी जो आपने कहा कि जो एफटीएज हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अदर कंट्रीज में भी हो रहे होते हैं, आप उनमें आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। वो हमें फिर वो अल्टीमेटली 15 दिन 20 दिन के बाद हमें उस अपने जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको हमें वापस लेना पड़ा। इसी वजह से कि क्योंकि जो आपकी इंपोर्ट है वो किसी दूसरे कंट्री की एक्सपोर्ट है, अगर आप उसकी इंपोर्ट बंद करेंगे तो वो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर भी जो इस तरह के जो एफटीएज होते हैं वो उससे आई मीन उसके साथ इन लाइन होते हैं। अगर आप किसी की इंपोर्ट बंद करेंगे तो वो भी आपकी एक्सपोर्ट को हिट करेगा। तो अनलेस कि हम अपनी, अगेन द बेसिक फंडामेंटल के जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट पार्स नहीं बढ़ाते, अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते, चीज़ों को नहीं बढ़ाते, तो हम उस पे तब तक हम अपनी मसल स्ट्रेंथ जाहिर बात है शो नहीं कर सकते उस लिहाज से उस फॉरम्स पे बड़े मुल्कों के साथ। यस, लेकिन जहाँ तक डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, वो हमेशा से गवर्नमेंट इन चीज़ों में इंगेज रहती भी है।
और करती भी है। अब जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके दरमियान ट्रेड की चीज़ें और तरह से निगोशिएबल होती हैं। तो डेफिनेटली हम इसके अंदर एज अ गवर्नमेंट कोई पॉलिसी आती है या कोई supporting with the muscles of our economy, our way forward, then we can obviously we will be a very happiest person to play our role by not only with China, with other countries as well, जहाँ जो हमारे सबसे बड़ी हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, कि वहाँ पे हमें मजीद जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या जो हमारी लेस नेगोशिएशंस हैं जो ड्यूटीज उस पे हो सके। Thank you. One more question. I'm sorry, sir. What are the possible, what do you think are the possible short-term and long-term measures that government can take to implement or for the stabilization of our balance of payments? Okay, Madiha. Well, we are stabilizing our balance of payment by controlling our imports. And in fact, I mean, this is an open sort of a secret कि हम अपनी इंपोर्ट नंबर को कंप्रेस कर रहे हैं, हम अपनी इंपोर्ट को अपनी एक्सपोर्ट के साथ, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है वो आपकी जो रेमिटेंसीज हैं, हम उस अच्छा रेमिटेंसीज के ऊपर क्यों इनवर्ड जो रेमिटेंसीज हैं वो आपका बड़ा अच्छा आपका नंबर जो है वो बढ़ रहा है। उस पे इंडस्ट्री खास तौर पे जब इंपोर्ट बिल को उससे नॉक ऑफ करना है इंडस्ट्री ने, स्टेट बैंक क्योंकि जब पेमेंट्स के लिए बैंक्स को ही एडवाइस कर रहा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो अपनी अपनी ही इनवर्ड से अपने आउटवर्ड जो है उसको नॉक ऑफ कर रहे हो। तो वो उसके लिए हम अपनी जो शॉर्ट टर्म में हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी जो नॉट ओनली एक्सपोर्ट, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं कि नॉट ओनली एक्सपोर्ट, हम अपनी जो इनवर्ड रेमिटेंसीज हैं स्टिल इसमें बहुत, ऑल्दो वी हैव क्रॉस द 30 बिलियन यूएस डॉलर इनवर्ड रेमिटेंसीज नंबर, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। अभी भी आप अगर देखें तो ये हम 10-12 अरब के नंबर से 30 अरब तक आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, आई मीन लेस देन अ डेकेड। हमने Yes. कुछ रिफॉर्म्स की, कुछ चैनलाइज किया चीज़ों को, हवाला हुंडी को डिस्करेज किया, जो रेट डिफरेंशियल था बैंकिंग चैनल में और ओपन मार्केट में उसको कर्टेल किया, तो जिससे और जो जो रेमिटर है उसको कंफर्टेबल फील हुआ। और अभी काफ़ी सारी हमारी इंडस्ट्री, स्टेट बैंक इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव्स ले रही है कि हम उस चीज़ में जाएं, फिर हम अपने आईटी सेक्टर की एक्सपेंशन में जाएं, फिर इंपॉर्टेंटली जो हमारे एक्सपोर्टर है उसके लिए हम अपनी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर हमारे जो सेक्टर्स हैं जिसपे हमने हमारे मसल्स हैं, हम फिर उसके लिए जो पॉलिसीज बनाएं वो सस्टेनेबल हों, फिर उसको तमाम इनेबलर्स दें कि वो फिर ओवर द टाइम जो है उसको उसके आउटकम्स हमें दे सकें। तो ये एक शॉर्ट टर्म में भी और एक सस्टेनेबल भी हमारी अप्रोच होगी जिससे हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो चैलेंजेस हैं उसको कॉप अप कर सकते हैं। Thank you, sir. Very well elaborated. Sir, as you have highlighted the importance of foreign direct investment. So So Maria, you one are last question. so on the lighter side. So you are asking all the question on behalf of everyone, or Apparently, go because ahead, I go ahead. No found issue, this no issue. No issue. webinar really very intriguing, very interesting. I really appreciate your valuable time. So I'm taking the most of the opportunity to ask questions because I have many questions in my mind. So as I have been going through these things. So just one Please go last ahead. question from you. Gigi, please. Okay. So, as you have very well elaborated the importance of foreign direct investment, so can you please help us or suggest us what are the different strategies Pakistan can have to attract more FDIs? Because it has a crucial role in addressing the BOP gap, if I'm not mistaken. You have, I mean, this is a very important questions, and in fact, thank you for asking this. When I was discussing in my this webinar when I was discussing the model of Vietnam. Yes. तो अब आप वियतनाम को देखें कि उसने जब अपनी देखें आपको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको, वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आपको एक लुक्रेटिव और एक इन्वायरमेंट देना पड़ता है
जिसके ऊपर वो आए और वो उसको आके अपनी, वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट करें। देखें, आपके जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे किसी भी फ्रेंडली कंट्री के साथ, वो एक इंटरम अरेंजमेंट होगा, वो आपको एक इंटरम रिलीफ देगा, लेकिन वो एक एज अ लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता। आपको जो एग्जैक्टली। एफडीआईज जब आपके मुल्क में आती हैं, सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो आपके यहाँ पे आके ना तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। वो कब आती हैं? जब उनको वो एक इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे एक चैलेंज हमें ये भी आ रहा है, एक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स है, या जो एक प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म्स है, वो अनलाइक टू दी अदर डेवलपिंग जो अच्छी कंट्रीज परफॉर्म कर रही हैं उनकी निस्बत, वो हमारी डिक्लाइन पे जा रही है। अगर आपको जैसे एक आई मीन हम नाम नहीं लेते, जो हमारी एक सबसे अच्छी एक हमारी एयरलाइन है, जो हमारी कौमी एयरलाइन है, हम सबको वी ऑल एक्चुअली वी ऑल आर वेरी, आई मीन हमें प्राउड फील होता है उसके ऊपर। लेकिन तो दुख भी होता है, क्योंकि आप ये देखें कि इन टर्म ऑफ लाइक 60s में, 70s में, और एक ये वो एयरलाइन है जिसने इंटरनेशनली बहुत सारी बल्कि एक बड़ी वन ऑफ द टॉप एयरलाइन की, Emirates Airline. जी, एमिरेट्स एयरलाइन को इनॉग्रेट करने में, ऑपरेशंस को चलाने में बहुत रोल प्ले किया। And we तो had the Rose Valley Hotel as well. जी, इसी तरह से हमारे इंडस्ट्री साइड पे भी, जैसे मैंने उस वक्त आपसे डिस्कस आपको कहा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो 60, 70, 80s में फ्लरिश कर रही थी। आज उनमें से चंद ऐसी हैं जो हमें हमारे पास हम गिन सकते हैं कि वो बाकी रह गई हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपको सबसे पहले क्योंकि वो ये देखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो स्टेबल होनी चाहिए। आपकी जो खास तौर पे रेट है आपका, वो Exactly. आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट 10 साल पहले पाकिस्तान में 60 रुपए या 100 रुपए डॉलर के हिसाब से आई थी, और अगर आज वो उसका कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो अब अगर 274-75 पीकेआर जो है डॉलर पैरिटी चली गई है, तो आपकी रेट स्टेबिलिटी हो, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, आपकी जो पॉलिसीज हैं उनकी स्टेबिलिटी हो, तो फिर ऑटोमेटिकली जब आपकी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो ये फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक लिक्विडेटिव मार्केट बन जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब ये इनेबलर्स प्रोवाइड होंगे, तो फिर एफडीआई जो है, फिर देखें, फिर बाकी सबका रोल बीच में शामिल हो जाता है इसमें। इसके अंदर आपका फिर गवर्नमेंट का, आपके डिप्लोमेटिक रोल, फिर एक्सियम्स का रोल, या और अदर जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो। लेकिन उसका जो बेस लाइन यही है कि जब तक ये नहीं होगा, तब तक वो इनेबलर्स जो है वो इसके अंदर निगोशिएशन उस तरह से कर नहीं पाएंगे। Thank you, Muzammil Saab. Really very thankful for this wonderful insight on this question. Uh, we are way ahead of our allotted time. Thank you all for your participation. In closing, I would like to extend a sincere thank to Muzammil Saab for sharing his expertise with us today, and for all of you for participating and contributing to this discussion. We hope you have found this webinar really informative and valuable. Please look out for a follow-up email with the recording of today's session and additional resources. Have a great day, and thank you once again for joining us. Thank you, Muzammil Saab. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।